Question 6th. A sports club is engaged in the development of their players by feeding them certain minimum amount of vitamins, say A, B and C, in addition to their normal diet. कुछ additional vitamins A, B और C feed किए जाते हैं to the players of the club. In view of this, two types of products X and Y are purchased from the market. दो products हम खरीदते हैं X और Y जिनमें ये vitamins A, B और C पाए जाते हैं. The contents of vitamins constituent per unit are given below. So each unit of X has vitamin A के 36 units, B के 3 units and C के 20 units. And similarly, each unit of Y will have 6, 12 and 10 units of vitamin A, B and C. Then it's given minimum requirement for each player. Every player needs how many vitamins A, B and C, the minimum requirement. The cost of product X is ₹20 and that of Y is ₹40. Cost दिया हुआ है हमें. Formulate the LPP for the above and minimize the total cost. So LPP has to be prepared with the objective to minimize the cost. Solve the problem by using graphical method. पहले तो हमें formulate करना है, उसके बाद हमें solve करना है. Whenever you will have LPPs formulate करने के साथ में solve करने के questions, so you will have easy LPPs. अभी तक हमने जो किया केवल formulation के, they will be complicated. पूरे 6 और 8 marks will be only for formulation. But जब solve करने के साथ में आपको form करना है, form इसलिए करना है so that you can solve. The main marks are allotted for that solution, not for formulation of LPP. उसके भी marks होते हैं पर कम होते हैं, तो accordingly आपकी LPP भी easy होगी. It will not be very complicated. आपने formulate किया LPP? बोलिए. Objective will be minimize Z is equal to 20x plus 40y. Number of units purchased of X be X and number of units purchased of Y be Y. Subject to (36x) plus 6y should be more than equal to 108. Very good. 3x plus 12y, this should be greater than or equal to 36 and 20x plus 10y should be greater than equal to 100. Minimum requirement of vitamins. और कोई constraint? No. Any doubts? इसमें कोई doubt? So then we'll have non-negativity xy greater than equal to 0. Now we have to solve this by graphical method. Solve करने के लिए मैंने आपको last lecture में भी बताया था, we have two methods. One is graphical and the other is this simplex. आपको question में कभी कभी तो दे से कि आपको कौन सी method से solve करना है, graphical या simplex. Sometimes they do not mention, सिर्फ इतना लिखा रहता है solve the LPP. So if there are two variables, only two variables, तभी ग्राफ यूज हो सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्स हम सिर्फ 2D में ही बनाते हैं. वी हैव ओनली x and y coordinates in graphs, no z coordinate. So whenever you have more than two variables in your LPP, क्वेश्चन ही नहीं उठता आपके मन में, सीधा आपको सिंप्लेक्स मेथड ही अडॉप्ट करना है, भले ही वो बोले ना बोले, आपको सॉल्व सिंप्लेक्स से ही करना पड़ेगा. When there are two variables given और क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, ग्राफिकल पे जाना है या सिंप्लेक्स पे, ट्राई एंड गो फॉर ग्राफिकल. आप एग्जामिनर से वहाँ पर ग्राफ्स की डिमांड कर सकते हो. अगर उनके पास में ग्राफ्स अवेलेबल होंगे देन यू कैन सॉल्व विद ग्राफिकल. ग्राफिकल विल बी ईजियर देन सिंप्लेक्स, वेरी इजी देन सिंप्लेक्स इन फैक्ट. तो अगर अवेलेबल होते हैं उनके पास में ग्राफ्स, इट्स बेटर टू गो फॉर द ग्राफिकल मेथड. अगर ग्राफ्स उनके पास अवेलेबल नहीं होंगे देन यू हैव नो ऑप्शन. इसका मतलब आपको सिंप्लेक्स से ही सॉल्व करना है. अगर वो चाहता ऐसी है कि आप ग्राफ से सॉल्व करो तो ग्राफ्स एग्जामिनर के पास होते नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू सॉल्व इट बाय सिंप्लेक्स ओनली. ओके.
ग्राफिकल मेथड से हाउ डू वी सॉल्व, तो जैसा हम हमेशा नॉर्मली इनइक्वालिटीज़ को सॉल्यूशन में करते आए हैं, यू हैव ऑलरेडी रेड हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस थ्रू ग्राफ्स। हर एक के हम x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन। ये जो तीनों कॉन्स्टेंट है, तीनों कॉन्स्टेंट्स के लिए वी विल फाइंड दी x एंड y कोऑर्डिनेट्स एंड वी विल ड्रॉ लाइंस। तीनों कोऑर्डिनेट्स के हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, उन लाइंस के बेसिस पे हम फीजिबल रीजन ढूंढेंगे हमारे पूरे ग्राफ में, विच रीजन विल बी फीजिबल। ड्यू टू दी नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन ये पक्का है कि x और y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वी हैव अवर सोल्यूशन ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने ही नहीं है ग्राफ के। सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा हमारा। ओके, दिस विल बी x एंड दिस विल बी y। क्लियर है? नाउ टेकिंग ईच एंड एवरी इक्वेशन, हमारे इनइक्वालिटी को उठाते हैं और उसके लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच इनइक्वालिटी। Constraint and the respective coordinates। पहला कॉन्स्टेंट है 36x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना, सारे सिंप्लीफाई हो सकते हैं। दिस इज डिविजिबल बाय 6, दिस कैन बी रिटन एज 6x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 18। सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारी वैल्यूज बहुत हाई नहीं हो। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो x और y की वैल्यूज बहुत हाई हो सकती हैं, जिनकी वजह से हमारा ग्राफ बड़ा बनेगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो छोटे छोटे वैल्यूज में ही हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। दिस विल बी x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 2x plus y greater than equal to 10. So the first constant is 6x plus y is greater than equal to 18. Now we will find the x and y coordinates. हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम x को 0 रख लेंगे तो y will be 18, मतलब our first coordinate will be 0 and 18. सेकेंड टाइम में हम y को 0 रखेंगे तो x will be 3. Okay, then the second inequality, which is x plus 4y greater than equal to 12. हम अगर x को 0 रखेंगे तो y हो जाएगा 3, y को 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 12. Third inequality is 2x plus y is greater than equal to 10. Again, if we take x as 0, y will be 10, and if we put y as 0, x will be 5. Okay, so we need, अगर हम x की बात करें तो x should go at least till 12, y की बात करें तो y should go till 18. आप स्केल अपने कन्वीनियंस से डिसाइड कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी एक बॉक्स को आप 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ही मानो. जो आपके ग्राफ में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं सेंटीमीटर्स के, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 2 3 4 ऐसे ही चलो. जब आपको बड़े नंबर्स चाहिए, आप करते आ रहे हो ये हमेशा से ना, यू डिसाइड स्केल ऑन योर सेल्फ. आप 1 सेंटीमीटर को 100 50 20 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो अपने कन्वीनियंस से. ओके, सो ओवर हियर हमें x में चाहिए 12 तक और y में चाहिए 18 तक के नंबर्स. सो वी कैन अज्यूम 2 और 3 एज 1 सेंटीमीटर. जो एक बॉक्स है 1 यूनिट, उसको हम या तो 2 भी मान सकते हैं या 3 भी मान सकते हैं, जैसा आप करना चाहो. इफ सपोज वी टेक इट एज 3, अगर हम स्केल यहाँ पर लिख दें, दिस इज इक्वल टू 3, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. So we have 3, 6, 9, 12, 15, 18. Here also we have 3, 6, 9,
12, 15, 18. The first line is passing from 0 and 18, where x is 0, y is 18. मतलब ये हो गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट, एंड 3 and 0, x is 3 and y is 0, दूसरा कोऑर्डिनेट. सो दिस इनइक्वालिटी, ये वाली जो लाइन है, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बनेगी. Now the inequality says this should be greater than equal to 18. 18 से बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब ये जो लाइन है, इसके राइट हैंड साइड वाला पोर्शन इज द फीजिबल रीजन, लेफ्ट हैंड साइड इज लोअर वाला. ग्रेटर वाला चाहिए तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन शुड बी द फीजिबल रीजन. This one is 36 or 6x plus y is greater than equal to 18. Then the second inequality, it goes from 0, 3, that means this point, and 12, 0, that means this point. So it goes something like this. x plus 4y is greater than equal to 12. अगेन ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब इसका भी ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, दिस शुड बी द फीजिबल पार्ट. थर्ड कॉन्स्टेंट 2x प्लस y, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले 0, 10, x is 0 and y is 10, somewhere over here. 5 and 0, somewhere over here. Again, this is also greater than equal to, मतलब इसके भी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन. तो अगर हम देखें, वो पोर्शन जो सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, एक तो इसी पे ही होना चाहिए वो पोर्शन, इसके इस साइड या फिर नीचे तो होना नहीं चाहिए. नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन, अदरवाइज हमारा ब्रेक हो जाएगा. ओके, एंड देन जो सारे इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ऑल द इनइक्वेशंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सबके ऊपर और राइट हैंड साइड में पोर्शन होना चाहिए. सो this will be the feasible region. ये बनाना सबको आता है, इसमें कोई डाउट? How to trace the feasible region, how to draw the constraints. Are we supposed to make the diagrams and everything with pen and exam? No, you can use pencils for diagrams. आंसर लिखने के लिए पेंसिल कभी भी यूज नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स. डायग्राम्स, ग्राफ्स, इन सब के लिए यू कैन यूज पेंसिल्स. It's better if you go for pen. Manipulation is not possible, but then you should be confident enough to use it. ये आपको वापस से रब नहीं करना पड़े, ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई गलती नहीं होगी. So this entire shaded region is the feasible region. अब इस region में से हमें निकालने solutions. So how do we find solutions? We find corners in this region. ये जो shaded portion आया है ना, इसमें हम corners ढूंढते हैं. So we have
one corner is this one, ये एक corner है हमारा, which is this one is 0, 18. The other corner is this one. It can be 2 or 6 या हो सकता है मेरा थोड़ा अलग आए, आप लोग exactly करोगे तो it will be different. This will be 2 and 6. Next corner is coming over here. 4, 2. This is 4, 2. Next corner is this one, that is 12 and 0. These are the 4 corners in the figure. जो हमारा पूरा feasible region है उसमें ये 4 corners हैं. इन चारों corners को हम इनके जो coordinates हैं उनको put करेंगे in the objective function. ये जो हमारा objective function है इसमें हम इनको put करेंगे the values of all these 4 coordinates. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज, मतलब इन चारों में से जो भी x और y की वैल्यूज हमें मिनिमम z देती हैं, जब x और y को हम इधर पुट करेंगे सो वी गेट द मिनिमम z, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा. अगर हम फर्स्ट वाला पुट करें, फर्स्ट वाले फिगर्स, दीज आर द पॉसिबल सोल्यूशंस. Cost, that is z. First वाले coordinates are 0 and 18. So 20x plus 40y. इसमें x की जगह हम 0 पुट करें, y की जगह अगर 18 पुट करें तो we'll get 20 into 0 plus 18 into 40. 720. Second में if we put 2 and 6, so 20 into 2 plus 18 into 6. $148. Then 4 into 20 into 4 plus 18 into 2. 116. And 20 into 12 plus 18 into 0. 240. We need the one with minimum cost. ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमाइजेशन है. मिनिमाइजेशन है मतलब इनमें से जो भी हमें मिनिमम देगा, दैट इज दिस वन. We'll select that as our solution. तो हम x के 4 यूनिट्स बनाएंगे. सॉरी परचेज. अच्छा ओके ओके, सारी गलत है क्या? Into 40, 240 plus 40, 280, 20 into 4 160. plus 2 into 40, 160, 20 into 12 plus 0 into 40, 240. Again this is the least. अभी भी इसका ही कॉस्ट लीस्ट है तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा. सो नंबर ऑफ यूनिट्स, number of units to be purchased of x 4 and y 2. x के हम 4 यूनिट्स परचेज करेंगे, y के हम 2 यूनिट्स परचेज करेंगे. एनी डाउट्स? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, क्वेश्चन 7th. राइट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 and again formulate the LPP.